Mala July, Sarfet Palangas, during Aika Butchesi, Tontak Po, during Azanai State Uskong Langas Tang, during Morse Uskong Langas, during a district in Bharatiya Janata Party, Karyakarta Samadringi Jalzum Skoteno, during Japo, Gagari history na Sumasang Jak Nanpajik, Black Day, Constitution in Madrid Day, Zerkan Mota, Sichesipia, Botenok, Cheers na. Diringata lo ngapchu songsteno jagar sangme sang jiktene nanga democracy cheshok si yuljik interesting nang jagari nanga tene tanashai mi chikchigi wang sulchesi sondus dangyampo jagari nanga emergency diringi jaga lagu choskya ngata congress party congress government Indira Gandhi ngata 1975 inanga ngata jagari nanga emergency tangse some shit political leaders yot Congress la Martin kan yod na te wo sangma jelas karkyak torture choskyak media cham che yod na te sangme ka ban tang se sujigi personal ngata freedom ma metkan choskyak di jakpo ngata ngai khoktong ngoni nanga ngata nga mimang sangme na ayu spell go se dring ma khakchani no dring Bharatiya Janata Party jagar itanika district rere rene nanga mandal rere rene nanga ayu talik chen yotero ngata ngai Ladakh se nanga inna chokla ngata district dunke nanga I black day scene yoteno I jak ngan pabo itu chochestang tene samshik ngata ngai I black day ka emergency imposed chokan beka book ma mangko distek I book gun silte I congress po ngata ngai jagar la noches jagar bo shua cultures tang tene jagari khilaba jagari yargas metkan chochesipia ma khongoni lakchen mo yotkan bo ngata tantan chogosesno diring ngata Indira Gandhi te tuzla samshik gata mi unla torture show student samshiga kampa changme ka taxte darkhatang skyak chejitna samshik student muni ngata protest shot diring tokla ngata ma aram se garung sa mi asperatang sa metkak songbajik tevo da nishu sakshik choste stingna chia choskari emergency bojitna Indira Gandhi kuste election inanga khorang tak chukste certificate tingskyak tevo Allahabad court inanga khongi tene ngata candidature bo cancel chostawajik tene kho ma shoyongste I gangma choskya khale songajik nyambo Indira Gandhi's ngata emergency tangkan bo ngata jagari history nanga I jagar chenme history nanga black day jak nganpa nang constitution I murder chokan bo sulatsiano diringang ngejarang ngoni zik sadna ngata Ladakh langendo karu yenang congress guni last chosul bo gangma semngan nang chusngan nang tene ngata yargas medala mimang des masukala democracy medala itu last chochesi darungang kongoni harkat yongado diringang ngeja zik sanok samshi congress ngata parwakta yoddo uskong yoddo ngata yulas nochesi statement kyang dano gazwa ngata sindur operation ngunsong teve chanang ngata jagari khilaba mane jagari favor na mana ko statement ta mano jagari army ngata sparka phapche spera mane ko te khong langata encourage chesi ta spera ta mano teve pia nye yuwa in samshik ngata social media na jukskan sangma samshik ngata silkan khoktong nang uskong leader sangma tene ngata amchik jukste na te press gunika kangun la ban ta setin dirin khulla I jakpo tene social media na silches books guni na silches I spera phelai choste dirin ngata Narendra Modi skumdun sko testing na chia juano ngata ngai congress mukt bharat choches khakchan te pia juano khong party cham yona democracy na yona diano innang I congress pe jaste ngata ngai jagar bo ma badnam nang ma jagar la muskil chenmo yongkan be jaste congress mukt bharat pia Bharatiya Janata Party sangme jadano susukat congress na jukste yodna te unang ma thelte te party na duk goshes manok juste juwa pulchezin yejan sangmai ka stoche la thugje che tene ngai acting na tene Vikram Randavas kumdon ngata ngai MLA Jammu Kashmir na jukste no ngata ngai ma gingpa उसके मुझे जुस्ते तेरे रंदावास आप थोड़ा उसको देख उसको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया चलिए अच्छा है आज पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को उस वक्त की तानाशाह तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र देश की लोकतंत्र की हत्या कैसे की थी आज उसकी 50वीं वर्षगांठ है और पूरे देश के अंदर
चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता समाज के अंदर उस वक्त की तानाशाही का रवैया जो है वो लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से पहले का ये दौर है जब प्रजा परिषद का दौर होता था, लेकिन डिक्टोरियन एटीट्यूड के साथ इंदिरा गांधी का एक रवैया था और उसी डिक्टोरियन एटीट्यूड को मद्देनजर रखते हुए 25 जून 1975 आधी रात को देश भर में उजाला होने के बजाय अंधेरा कर दिया गया और बिल्कुल ब्लैक इमरजेंसी जो है पूरे देश में थोप दी गई। जितनी ज्यादा एट्रोसिटीज उस दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए, खास करके जो राष्ट्रवाद की आवाज को लेकर चलते थे, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेके, जनसंघ की विचारधारा, प्रजा परिषद की विचारधारा को लेके, या फिर जो कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, उनको बिल्कुल भी बोलने की, चलने की, उठने की इजाजत नहीं दी थी। और वो दौर जो है भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखे जाने वाला वो दौर रहा। जितनी देर भी इमरजेंसी रही, उस दौरान किसी भी भारतीय नागरिक ने चैन की सांस नहीं ली। जो लोग जेलों के बीच में थे उनके साथ बहुत बुरे, मानवता का भी क्रूरता जिसे कहते हैं, जो दौर मुगलों का भी लोगों ने देखा, अंग्रेजों का भी देखा, उस दौरान भी इतनी यात्राएं याद नहीं दी जाती होंगी जो आजादी के बाद उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने दी। लेकिन 1977 में जब फिर से डेमोक्रेसी बहाल हुई और जनता ने फैसला लेना तय किया तो जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी की उन चुनावों में जमानत जब्त हुई थी। पूरी की पूरी कांग्रेस धराशायी हो गई थी और एक मिलीजुली चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो मोटा मोटा आज भी देश की जनता को वो बातें बताने बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ने आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ मिलके, आजादी के बाद तानाशाही का रवैया और मजबूत आवाज को हमेशा स्नब करने का प्रयास, और आखिर में जब कुछ नहीं चला तो फिर इमरजेंसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इमरजेंसी लगाने का मतलब जो है वो बड़ा गंभीर होता है कि जब बिल्कुल ही बात आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हो, लोग सड़कों पे उतर चुके हो, तब जाके ये दौर आता है। लेकिन ऐसा कोई वातावरण नहीं था। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी को एक डिक्टोरियल एटीट्यूड दिखाने का उसकी सोच थी, तो उसके जो सलाहकार थे उन लोगों ने उनको यही सलाह दी कि मैडम इमरजेंसी लगाई जाए और जिस तरीके से ये राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से स्नब किया जाए। लेकिन बजाय स्नब करने के उन्होंने जितनी भी ज्यादा एट्रोसिटीज की, यातनाएं दी, उसका परिणाम यह निकला कि मजबूत ताकतें जो है वो और मजबूत होकर निकली, जिसका परिणाम 1977 का लोकसभा का चुनाव निकला, जहां पूरी की पूरी कांग्रेस धराशायी हुई। हालांकि वो सरकार 3 साल ही चली। 1980 में फिर से चुनाव हुआ देश के अंदर और कांग्रेस फिर से जीती, इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। शायद अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा कि हमने गलती की, लोगों से माफी मांगी होगी, लोगों के बीच में गए होंगे, तो दोबारा लोगों ने चुन के भेजा। तो मित्रों, आज लद्दाख यूटी के कार्यालय में भी और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये 50वीं वर्षगांठ जो है इमरजेंसी के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के किलर के तौर पर इंदिरा गांधी उन दिनों जानी जाती थी। तो वो दौर भी आज शायद उसमें से कुछ लोग भी हैं जिन लोगों ने वो यात्राएं झेली हुई है। कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई उसमें 18 साल के थे, कोई 20 साल के थे, कोई 25 साल के थे, तो उनको जेलों के बीच में डाला। कोई 15 महीने रहा, कोई 18 महीने रहा। लेकिन वो लोग जब बताते हैं कि 3-3 दिन के बाद खाना देना, पानी गिलास में देना, फिर गिलास को पांव मार देना,
कि जो गिरा हुआ पानी है उसको इकट्ठा करके पियो। तो ऐसा बर्बरतापूर्ण एक आजाद देश में रवैया कभी किसी सरकार का लोगों ने नहीं देखा होगा, जो उस वक्त इंदिरा गांधी का देखा गया। तो आज मुझे लगता है कि जानकारी के माध्यम से भी और ऐसे मीडिया इंटरेक्शन के माध्यम से भी पार्टी का एक बेहतरीन प्रयास रहता है। मैं लद्दाख यूनिट के प्रेसिडेंट स्टन सिंह फुनचुक जी को भी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि पार्टी के क्रमबद्ध तरीके से जो भी कार्यक्रम मिलते हैं उसको यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से भी पार्टी उसको चैनलाइज करने के लिए गाइडलाइंस देती है वो ये करते हैं। उसी के निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। अभी मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष स्टन सिंह फुनचुक जी इमरजेंसी के आज के इस दौर के आज के इस दिन के ऊपर जो 50वीं वर्षगांठ हम इमरजेंसी की मना रहे हैं अपनी बात रखेंगे। नमस्कार वाजुल है। आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एमएलए विक्रम जी, आज के प्रोग्राम के संयोजक वाइस प्रेसिडेंट दुर्जाम चुगले, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्ससीसी पी वंगल जी, जनरल सेक्रेटरी कुंजांग ले, वाइस प्रेसिडेंट समतन ले, महिला प्रेसिडेंट रिंचन ले और सबका नाम लेते नहीं रहूँगा, यूथ प्रेसिडेंट ठिल्ले ले और सारे यहाँ पे क्रियाकर्ता, यूथ हो चाहे महिला हो चाहे किसान के हो, सबको आज यहाँ इकट्ठे होने का मतलब अभी जिस तरीके से बताया है, इनको ना दोहराते हुए मैं फिर से संक्षिप्त में दो चार बोलना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो जो डेमोक्रेसी का हत्या किन हालातों में होता है या हो सकता है, इससे पहले भी 75 से पहले भी एक आध इमरजेंसी लगे थे, लेकिन वो थे जब चीन के साथ युद्ध लड़ा गया या पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया, उन हालातों में इमरजेंसी लग सकते हैं। और इसके अलावा अंदरूनी बिल्कुल ही अगर पूरा देश के ऊपर कोई खतरा हो तब भी लग सकता है। लेकिन जो इमरजेंसी हम लोग याद रखना जरूरी है, क्योंकि बीते कल को मैं पहले भी बताया था, भूल जाते हैं। 75 में हुआ क्या था, बहुत सालों से एक घर का, परिवार का शासन जिस तरीके से चलते आ रहा था वो समाप्त होने को आया। वो कानून के द्वारा खत्म किया गया। जिस तरीके से दुर्जाम ने बताया, इलाहाबाद कोर्ट ने मैडम इंदिरा गांधी जी को उनके जो सदस्य है खत्म किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें भी उनको ज्यादा राहत नहीं मिला। तो अचानक ही आधी रात को, जिस समय प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट अली अहमद साहब था, रात के 12 बजे उनके हाथों से साइन कराया गया। कोई किसी कैबिनेट के साथ एक्चुअल में जब भी लगता है, ये लोकसभा में या राज्यसभा में वहां पे पास होकर के फिर प्रेसिडेंट के पास जाना होता है। लेकिन ऐसे ना होकर के बिल्कुल ही आधी रात को उनके द्वारा हस्ताक्षर करके ये सौंपा गया, ताकि अपने परिवार का जो दुख सुख, जो सुख सुविधाएं वो ले रहे थे उसको आगे तक चलते रहे। इसलिए उन्होंने ऐसे ही मतलब इमरजेंसी लगाया गया। इसके बाद तुरंत बाद लगभग 2 लाख के लोग जेल में ठोसा गया। बाद में अंत होने तक तकरीबन 10 लाख लोगों को इसमें जेलों में डाला गया। इसमें अपने पार्टी तब तो नहीं थे, लेकिन वरिष्ठ नेता लोग इसमें सबको, जितने भी जिस पार्टी का भी थे, सबको बंद किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ उन दिनों बीता होगा। सारे प्रेस क्लब को, सारे प्रेस को खत्म किया गया। तकरीबन 3801 प्रेस को बिल्कुल ही खत्म किया गया। जो भी बड़े बड़े प्रेस थे उन सबको इकट्ठे करके एक कमेटी बनाया गया, और जो भी प्रेस में जाएगा, जो भी टेलीविजन तो तब मुश्किल से थे, जो भी वहां पे प्रेस में जाते थे, जो भी लोगों तक पहुंचते थे, वो सेंसर हो करके जाना होता था। अदरवाइज कोई भी मतलब प्रेस रिलीज नहीं जा सकते थे।
आज के जो कांग्रेस के लोग हमें बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं कि संविधान को खत्म कर रहा है। सही मायनों में कहा है, तब कांग्रेस ने जिस तरीके से न्यायपालिका या जुडिशरी उनको अपने कैबिनेट में ला करके, अपने संसद में ला करके खत्म किया गया था। बिल्कुल किसी को हिलने का, कोई बोलने का हक तक नहीं था। असली जो हत्या था उन्होंने तब की थी। जो हमारे पीछे या जो नीचे भी कुछ पोस्टरों के द्वारा हमने इसको लोगों तक या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इनसे भी समझ सकते हो कि तब क्या हुए थे। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये सारे थे। अटल जी ने सही कहा था, किसी दिन सूरज निकलेगा, अंधेरा छाटेगा और कमल खिलेगा। आज मैं समझता हूं आज वो दिन आ गया है और कांग्रेस के बिल्कुल ही तकरीबन हर साइड से खत्म, एज पे, किनारे पे पहुंच चुका है। और जो झूठ के सहारे पे चलते हैं वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। तब इंदिरा को कहा करते थे, इंदिरा है तो इंडिया है, इंडिया है तो इंदिरा है। इंदिरा को काली माँ की, दुर्गा की से तुलना किया जाता था। लेकिन हकीकत में उन्होंने जो भी गवर्नमेंट मशीनरी थे, इलेक्शन हो चाहे जिस तरीके से भी हो, सबको अपने मनमानी के तौर चलाते थे। और इसी वजह से आज कांग्रेस का हाल ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जो लद्दाख में क्या कुछ नहीं किया, इन्हीं 2-4 सालों में यूटी से लेकर के 5 डिस्ट्रिक्ट, बड़े बड़े लोग कहा करते थे कि हम डिस्ट्रिक्ट लाएंगे, ये लाएंगे। जेएनके में पता नहीं कितना डिस्ट्रिक्ट बने थे, तब लद्दाख को एक डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था। आज जो लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट ये है, बगैर किसी को एक कंकड़ से ठोकर ना खा करके, मतलब कोई किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को किसी के पुलिस द्वारा पिटा नहीं गया। 5 डिस्ट्रिक्ट हमें मिला है, यूटी स्टेटस मिला है। आज देखिए जेएनके से अलग होकर के सब कुछ, आज वुमेन रिजर्वेशन इंडिया में पहली जो हिल कौंसिल में अगर आने वाले दिनों में 33% वुमेन्स का रिजर्वेशन होगा। 85%, 95% रिजर्वेशन जॉब्स में जो यूथ्स को किसी इंडिया के और कोने में नहीं है। ये सारे मैं समझता हूं आज हमारे गवर्नमेंट ने, या मोदी जी के गवर्नमेंट है, या भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट है, ये तभी संभव है। अदरवाइज कोई और होते, हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि आज लद्दाख को 5 डिस्ट्रिक्ट हो, आज 95% जॉब रिजर्वेशन हो। हमें पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में भी लद्दाख को जो चीज की जरूरत है पूरा मोदी गवर्नमेंट पूरा हमें प्रदान करेंगे। हमें वो सारे हमें मिलेगा, हमें पूरा उम्मीद है। मैं फिर से आज यहाँ पे हमारे बीच धन्यवाद जी, विक्रम जी एमएलए आज हमारे बीच आए हैं, आपको थैंक्स कहना चाहूंगा। साथ में जो भी कार्यकर्ता, साथ में मीडिया पर्सन जो भी यहाँ पे आए हैं, सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। और जो बातें यहाँ पे छिड़ा है, हमारे युवाओं को, आज के पीढ़ियों को ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने क्या कुछ अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कुछ किया था, वो लोगों को जानना जरूरी है। ताकि आज जो लोग बोलते हैं कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या किया है, ये लोगों को समझना होगा। वो जो लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन की वो हाथ में लेकर के तो घूमते हैं, लेकिन अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। और इस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्ता को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। फिर से लास्ट में एक बार सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आने के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा। साथ में मीडिया पर्सन को भी थैंक्स करना चाहूंगा। जुले नमस्कार व सलाम अलैकुम। जुले सबको।